آپ داد دیتے ہیں نہ آپ کو سمجھ آتی ہے. یہ آن اے لائٹر نوٹ. بہرحال آپ کی بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا صدر محفل کو. اچھا ایک اور اس سے پہلے میں ایک ٹانکا فٹ کرنا چاہوں گا. میں نے جتنی آج اس ہال میں باتیں کی ہیں اپنی بیگم کی موجودگی میں کی ہیں. یہ میرا حوصلہ ہے. میری بیٹی اقرا بھی بیٹھی ہے, عبداللہ بھی بیٹھے ہیں. ان کو بیٹھنے کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن آج یہ بیٹھے ہیں. ان کو بھی داد دینی چاہیے. سو جی وداؤٹ اینی لیٹ صدر محفل کو میں اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت شخصیت, دھیمے لہجے میں بولتے ہیں لیکن بول کے کلیجہ نکال دیتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب اعتبار ساجد صاحب. خواتین و حضرات, میرے دوستوں, بھائیوں, وہ انہوں نے ڈاکٹر فخر نے بھی کہا تھا کہ جب آپ آڈیو بنا لیں زوم کر لیں. شاید تو سمجھ گئے ہوں گے. اچھا, ابھی مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. سائمہ آفتاب ہمارے عہد کی بہت اچھی شاعرہ, اور انہیں دیکھ کے ملتے تو ہم پہلے بھی رہے لیکن ابھرتی ہوئی شاعرات میں اگر کوئی نام ہے تو میں سمجھتا ہوں سائمہ آفتاب. ڈاکٹر صاحب حلالت کے باوجود آئے, میرے دوست ہیں, بہت پیارے, ان کا شکریہ. ہمارے پیر صاحب انہوں نے ایک نسخہ دیا ہے کہ جیڑی گل تسی اتنے سن رہے ہو انہوں اپلوڈ کر دینا اپنے فیس بک تے. مشاعری دی کوئی لوڑ نہیں, داد تو ہمیں اتنے بڑی مل جائے. اللہ دا خوف آپ کا مشاعرہ نہیں ہوتا, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جسے تحریک نفاذ اردو کو برقرار رکھنا. غالب نے کہا تھا, باقی باتیں پھر کریں, غالب نے کہا تھا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہر ایک بات سے کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اور آپ کے نیازمند اعتبار ساجد نے کہا تجھے شکایت احباب روبرو کیا ہے. تجھے شکایت احباب روبرو کیا ہے. زبان ہی تو تعارف ہے ورنہ تو کیا ہے. تجھے شکایت احباب روبرو کیا ہے. زبان ہی تو تعارف ہے ورنہ تو کیا ہے. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا. تو میری سانس میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا. تو میری سانس میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح. اور کیسے اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے. میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے. میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے. اس نے کہا کہ کون تمہیں ہے بہت پسند. اس نے کہا کہ کون تمہیں ہے بہت پسند. میں نے کہا
کہ دل پہ جسے اختیار ہے، میں نے کہا کہ دل پہ جسے اختیار ہے، اس نے کہا خزاں میں ملاقات کا جواب، اس نے کہا خزاں میں ملاقات کا جواز، میں نے کہا کہ قرب کا مطلب بہار ہے، کہا کہ قرب کا مطلب بہار ہے، اس نے کہا کہ کون سا تحفہ تمہیں میں دوں، اس نے کہا کہ کون سا تحفہ تمہیں میں دوں، میں نے کہا وہ شام جو اب تک ادھار ہے، اس نے کہا کہ کون سا تحفہ تمہیں میں دوں، میں نے کہا وہ شام جو اب تک ادھار ہے، اس نے کہا کہ سینکڑوں غم زندگی میں ہے، میں نے کہا کہ غم نہیں جب غم گزار ہے، اس نے کہا کہ ساتھ کہاں تک نبھاؤ گے، اس نے کہا کہ ساتھ کہاں تک نبھاؤ گے، میں نے کہا کہ جتنی یہ سانسوں کی تار ہے، میں نے کہا کہ جتنی یہ سانسوں کی تار ہے، اس نے کہا کہ آئے یقین مجھ کو کس طرح، اس نے کہا کہ آئے یقین مجھ کو کس طرح، میں نے کہا کہ نام میرا اعتبار ہے، کیا کہنے آپ کے، میں نے کہا کہ نام میرا اعتبار ہے۔ اب آپ کی وہ غزل جس کا حکم دیا تھا محترمہ افشین شہریار صاحب، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار، جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے یوگ کی دھوپ دو۔ سنیں خلیفہ صاحب، میں خوبصورتی آپ کے نام منسوب کر رہا ہوں، میں حکمت والا جوان آدمی، ٹبر کھا جوان ڈکار نہ مارا، آپ کی نظر ہے، آپ کے حسن کی نظر ہے، حسن بھی دیکھ لیں آپ، میں کسی اور کو کہا کہ میں نے پھنسنا ہے، نہیں جانا ہے، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے رنگ کا، مجھے اپنے، آپ بھی ذرا ادھر کھڑی ہو جائیں ورنہ اشارہ غلط ہو جائے، معلوم چاہتا ہوں آپ سے اٹھے، لو جی بزرگوار بھائی بزرگوار کہہ کے میں نے باشی، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط، اللہ کرے داڑھی نہ بس ایسے ہی رہے کام، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو
मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो, किसी और को मेरे हाल से न गरज है वास्ता, किसी और को मेरे हाल से न गरज है कोई न वास्ता। मैं बिखर गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, मैं बिगड़ गया हूँ, संभाल लो। खुद को पेश करने की हद है। वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर, हालांकि है। ये शायर लोग जो होते हैं दूसरे चेहरे अच्छे लगते हैं, अपने घर वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना घर वाला चेहरा अच्छा लगता है। कोई एक शेर भी सुना दूं, मैं किस ज़बान से करूं शुक्रिया अदा उसका, मैं किस ज़बान से करूं शुक्रिया अदा उसका, जो बूढ़ी हो गई मुझको जवान रखते हुए। शुक्रिया अदा उसका। शायद लोग तो दूसरे महबूब ढूंढते ना, हमारा महबूब घर में बैठा हुआ। बेहतरीन। वहाँ इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा तो कई घरों में बैठा हुआ है, तो महबूब नहीं बटेरा है। महबूब तो एक ही जगह बैठेगा। वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर, जिसे हम होते सवेर का। वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर, जिसे हम होते सवेर का। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसी चांदनी में वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर, जिसे हम होते सवेर का। बड़ी मुख्तसर सी रात है, इसी चांदनी में रात हो। कोई बात करनी है चांद से, सरकार फिर तो आने वाले दुख है मेरा, तुझे मेरे आप सामने ना आइए, आप गड़बड़ हो गए। शायर भी है, शरीफ आदमी होना अपनी जगह, शायर होना अपनी जगह। कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओर में, इनसे आम जगह पे आप बात नहीं कर सकते। ये चांद है और हमारे दिल का चांद है, इनसे तन्हाई में आपने बात करनी तो कैसे करनी है? आप शायर हैं तो कैसे करें? कोई बात करनी है चांद से, मुझे शाखसार की ओर में, कहीं किसी शाखसार की ओर में, मुझे रास्ते में यही कहीं किसी कुंजे गुल में उतार दो। तुम्हें जब कभी मेरे फुर्सते मेरे दिल से बोलता दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, ये कोई शाम बहुत शुक्रिया तमाम ऑडियंस का। मैं माजरत चाहता हूँ सबसे पहले कि मुशायरे का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया होगा फर्दे जज्बात में, मैं माफ़ी चाहता हूँ सरकार। 20-22 साल पहले की बात है, एक मुशायरे में मुझे एक साहब ले गए, मेरे सीनियर दोस्त थे, आज भी हैं। तो जब मैंने वहाँ पढ़ी थी, वो मैं आपको कुछ गुजार करूँगा ज़रूर आज। वो थी कि सुना है पिछले वक्तों में वही शायरों के लिए, सुना है पिछले वक्तों में किसी राधा की बेटी ने अय्यामे गर्दिशे दौरा की अरजानी से तंग आकर
सुना है वाली बसरा को एक नामा गुजारा था, सुना है मिस्र कासिम ने मोहम्मद नाम था जिसका निज़ाम खून आगश्ता को एक अंजाम बख्शा था। उसी मर्द मुजाहिद ने हर एक राधा की बेटी को बड़ी तौकीर बख्शी थी। सुना फिर आज बेआसरा हवा की बेटी को अयामे गर्दिश दौरा की अरजानी से शिकवा है। बहुत मखमूम हूँ मैं भी इन्हीं सोचों में गलता हूँ कि उस मर्द मुजाहिद को मोहम्मद नाम था जिसका कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो वहाँ के जो सदर साहब थे मुशायरा के या जो भी इंतजामिया के लोग थे, उन्होंने मुशायर को बुलाकर मेरे सामने कहा था, यार ये लौंडे लपाटे आप ले आते हो तो पहले पूछ लिया करो किसी को पढ़ाने से पहले। मैं माफी चाहता हूँ, शायद उसके पीछे वो पूरी कहानी थी जो मैंने वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं की। मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जो मैं देख रहा था जब वो किसी को कह रहे थे या एक्टिविटी हो रही थी। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था, मुशायरे की मैंने कोई उसकी बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपके कलाम में ताकत होगी, आप ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया की बात की थी। बारह सरकार आप बड़े हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी की खास कार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। एक लास्ट बात और तय हो गई है कि एतबार साजिद साहिब बहुत उदास हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम वीडियो को अगर आप देखना चाहें, तस्वीर लेना चाहें, इंशाल्लाह मैं अपने रेडियो के शो में भी इस सारी महफिल पे बात करूंगा। आरजे आबिद नसीर का पेज है फेसबुक पे, जो मेरा अपना पेज है, उस पे सारी रिपोर्ट जो टीवी टुडे पे भी चलेगी। ये चूंकि वो बारिश की वजह से और ये जो कल सारा सानहा हुआ है उसकी वजह से सारे रिपोर्टर्स बिजी हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट जरूर चल जाएगी टीवी टुडे पे। तो वो रिपोर्ट भी आप सब लोग सब आएंगे इंशाल्लाह उसमें। ये आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो चुकी है। तो आपके इस पेशेंस का बहुत शुक्रिया। और अब मैं नबील साहिब को दावत दूंगा कि वो तमाम मेहमानान को शील्ड्स पेश करवाएं। आपकी मोहब्बतों का एक दफा फिर शुक्रिया, अपने लिए भरपूर तालियां कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे सिर्फ शील्ड देने से पहले एक शेर नसीर मिल्लत हजूर किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का तमाम मेहमानों ग्रामी को देना चाहूँगा, वो कि शाफी को अलील कौन कर सकता है, शाफी को अलील कौन कर सकता है, सखी को बखील कौन कर सकता है, जिसको इज्जत मेरा खुदा दे नसीब फिर उसको जलील कौन कर सकता है, फिर उसको जलील कौन कर सकता है। मैं अब प्रोफेसर एतबार साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं और जो शुरा इकराम है उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको शील्ड देनी है। और मैं अताउर रहमान चौहान साहब से भी गुजारिश करूंगा और रफीक भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आएँ। तो सबसे पहले मैं मोहतरमा सबाहत सईद साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। तालियों की गूंज में उनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। मोहतरमा सबाहत सईद साहिबा, साहिबा। उनके बाद मोहतरमा ताहिरा जबीन। तालियों की गूंज में मोहतरमा ताहिरा जबीन साहिबा। उनके बाद मोहतरम अकील अब्बास चौथाई साहिब। मोहतरमा अलीमा जबीन साहिबा। डॉक्टर फखर अब्बास, डॉक्टर फखर अब्बास साहिब। मोहतरमा साइमा आफ्ताब साहिबा। अब मैं डॉक्टर पी तारक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्त से
खड़े हों और अपनी शील्ड वसूल करेंगे। वो प्रोफेसर एतबार साजिद साहिब से डॉक्टर पी तारक। अब मैं गुजारिश करूंगा इफ्तिखार इफ़ी साहिब से कि वो अपनी नशिस्त से और इफ्तिखार इफ़ी साहिब अपनी शील्ड वसूल करके और उसके बाद वो जितने बाकी हमारे मेहमानों गिरामी हैं उनको शील्ड से नवाजेंगे। तालियों की गूंज में इफ्तिखार इफ़ी साहिब। एतबार साजिद साहिब अपनी नशिस्त पे बैठ सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा अफशीन शहरियार साहिबा से कि वो आए और आपकी तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि आज की ये बज़म, आज की ये महफिल, आज की ये मजलिस अगर कामयाब हुई है तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो रोल है वो मोहतरमा अफशीन शहरियार साहिबा का है। तालियों की गूंज में दावत दीजिएगा मोहतरमा अफशीन शहरियार साहिबा। रफीक भट्टी साहिब जो कि नाज़म हैं लाहौर तहरीक निफाज़े उर्दू पाकिस्तान के, तालियों की गूंज में मोहतरम रफीक अहमद भट्टी साहिब। उसके बाद मैं सदर तहरीक निफाज़े उर्दू मोहतरम अताउर रहमान चौहान साहिब को गुजारिश करूंगा और तालियों की गूंज में उनको ये शील्ड दी जा रही है इफ्तिखार इफ़ी साहिब के दस्ते। आप सबकी तालियों की आवाज यहां तक आनी चाहिए। मोहतरम उनके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम डॉक्टर जावेद इकबाल नदीम साहिब कि वो स्टेज पे आए। तालियों की गूंज में माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे कदीम अखबार रोजनामा नवाए वक्त के साथ मुंसलिक हैं। उनके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आबिद नसीर साहिब अंदाज़े गुफ्तगू अदायगी में अपना नाम अपनी पहचान एक अलग जाविये से रखते हैं। मोहतरम आबिद नसीर साहिब, तालियों की गूंज में मोहतरम आबिद नसीर साहिब। उसके बाद मैं मोहतरम असलम अलवरी साहिब जो कि आज नहीं आए, उनकी शील्ड आज जो वसूल करेंगे अताउर रहमान चौहान साहिब। मोहतरम असलम अलवरी साहिब आज मसरूफियत की वजह से शिरकत नहीं कर सके। साहिब को बुलाते हैं कि वो अपना इनाम वसूल करें। अब मैं आज के मुशायरे की सदारत जिन्होंने की
वतन अजीज पाकिस्तान के नामवर शायर, और मैं सर गुजारिश करना, मैं बचपन में मेरे घर में किताब थी एतबार साजिद साहब की, जिसमें इनका वो शेर था, खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। उससे मैं इनको जानता था। आज पहली बार इनकी ज़ियारत की है और बड़ी खुशी हुई है मेरे लिए, खुशकिस्मती की बात है सर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तालियों की गूंज में दावत दीजिए मोहतरम एतबार साजिद साहिब, और उनको शील्ड से नवाजेंगे इफ्तिखार इफी साहिब। मोहतरम अफशीन शहरियार साहिबा स्टेज पे आ जाएं। इनके बाद फरजाना काशिफ साहिबा स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपने शील्ड देनी है एतबार साजिद साहब के भी हो। एतबार साजिद साहब को शील्ड से नवाजेंगे अताउर रहमान चौहान साहिब, अफशीन शहरियार साहिबा, वस्ती पंजाब की तहरीके निफाज उर्दू की सदर हैं और आज की तकरीब को कामयाब करवाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी दिन रात की मेहनत से आज ये तकरीब कामयाब हो सकी। मोहतरमा अफशीन शहरियार साहिबा, मोहतरमा फरजाना काशिफ साहिबा को शील्ड से नवाजेंगी अफशीन शहरियार साहिबा। सलमान साहिब बुरेवाला से तशरीफ लाए हैं। तहरीके निफाज उर्दू की पूरी तजामिया की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। आपने इस कौमी मकसद तहरीके निफाज उर्दू के लिए आज बुरेवाला से लाहौर का सफ़र किया है। आपके हम शुक्रगुजार हैं। बाकी साहब जो जहां से भी तशरीफ लाया है उन सब के हम शुक्रगुजार हैं तहरीके निफाज उर्दू की तजामिया की तरफ से। अब मैं गुजारिश करता हूँ ज़िया साहिब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, और अफशा कियानी साहिब वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। अफशा कियानी साहिबा, इफी साहब, अफशा कियानी साहिब, अफशा कियानी साहिबा। अब तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और पाकिस्तान का कौमी तराना
Thank you.